Hello everyone, welcome to Learniverse. So we are back with the new chapter of class 12 biology, that is sexual reproduction in flowering plants. Earlier there used to be four units in four chapters in the first unit. So the first one chapter that is reproduction in organism is removed from your syllabus, including the boards and competitive exam syllabus. So we'll be starting with the second chapter, which is now the first one, that is sexual reproduction in flowering plants. So let me give you a quick recap of the first chapter, which is now removed because it is very essential to know the important definition, including the definition of reproduction. So you can write it in your copy or you can remember it. Basically, reproduction is a biological process by which organisms create more organisms like themselves. And it is one of the most important concepts of biology because it ensures the continued existence of species. That is, reproduction is essential for species continuity. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी पॉपुलेशंस नहीं बढ़ेंगी और स्पीशीज को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, जिससे एट लास्ट क्या होगा, एक्सटिंक्शन ही होगा ना. वील बिकम endangered and then we'll extinct. So reproduction is a vital process without which species cannot survive for long. Okay, so now reproduction, as you have learned in your earlier classes, it's of two types, that is asexual and sexual. So sexual mode of reproduction enables creation of new variants so that sex survival advantage is enhanced. And now sexual reproduction involves two parents, so there is like chances of slight variation as compared to asexual reproduction. क्योंकि asexual reproduction में since there is involvement of only single parent, clones are formed which are the copy of their parents, so there is no variation. तो इसीलिए sexual reproduction ensures variation. Now moving forward, in this chapter we'll be reading about flower, a fascinating organ of angiosperms. This is the heading written in your NCERT. So we'll be reading about the flower, then we'll be moving to pre-fertilization, that is structure and events. Then we'll be studying about stamen, microsporangium and pollen grain, and also the process of microsporogenesis. Then in the next video we'll be covering the further chapter, but in this video we'll be covering only these two parts or three parts. That includes, first one is flower, and then we'll be covering the pre-fertilization event, that is stamen, microsporangium and pollen grain and microsporogenesis. So let's start with the first part of this chapter, that is the flower. This is a diagrammatic representation of a LS of flower, that is longitudinal section of a flower. इसमें आपको flowers के parts दिख रहे होंगे. First part, that is we can start with this petal. So this is a petal. This is the accessory organ of your plant or a flower. Then you have second accessory organ, that is sepal, and then you have essential organs, that is anther and filament, which forms the stamen, and stigma-style ovary, which forms the pistil, that is female reproductive part, also known as gynoecium, and the male reproductive part is known as androecium. So anther and filament form androecium, stigma-style and ovary form gynoecium. दिस फ्लावर में आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी में वही लाइंस मेंशन्ड है कि फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू. मतलब उसकी यूजेस बता रखे हैं बेसिकली, जो ऐसे आते नहीं है आपके सिलेबस में, बट you can learn only these four parts, that is petal, sepal, androecium, that is made up of anther and filament, and gynoecium, that is made up of stigma, style and ovary. Moving ahead, we have pre-fertilization events. So hormonal and structural changes initiate, which lead to differentiation and further development of floral primordium. Inflorescences are formed, which bear the floral buds and then the flowers. So जबकि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उसमें आपका जो फ्लावर होता है उसमें हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं,
जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन होता है और फ्लोरल प्रिमोडियम बनता है, मतलब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है जिससे एक प्रॉपर फ्लावर बनता है। स्टार्टिंग विद इनफ्लोरेसेंस बनते हैं। इनफ्लोरेसेंस आर द पार्ट्स विच बेयर द फ्लावर। उस पे फ्लोरल बड्स आते हैं और उसके बाद उससे फ्लावर्स बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद करने का तो नहीं है, बस ये लाइन आप याद कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। या फिर आपके ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। सेवरल हार्मोनल and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. Then moving ahead, we have the stamen, microsporangium and pollen grain. सो ये जो फिगर है आपका, ये आपका टिपिकल स्टेमन दिखाता है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें ये आपका एंथर है एंड दिस इज द फिलामेंट दैट इज द स्टॉक and this shows the three dimensional cut section of an anther. तो ये आपका जो एंथर है इसको आपने टीएस काटा है और उसके बाद आपके उसमें लोब्स दिख रहे हैं, जिसका मैग्नीफाइड व्यूज आपको आगे की स्लाइड में देखने को मिलेगा। So figure shows two parts of a typical stamen. A long slender stalk called the filament. This part is called the filament. आपका जो ये पूरा पार्ट है, this is the filament or the stalk, and this is the anther. So these are the two parts of the stamen, and anther is terminally generally bilobed structure. मतलब इसमें टू लोब्स है। फर्स्ट लोब आपका ये आगे वाला जो आपको दिख रहा है एंड सेकेंड लोब जो इसके पीछे आपको दिख रहा है। एंड दिस इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। तो इसके नीचे आपको यहाँ पे थैलेमस मिलता है या पेटल से अटैच्ड होता है, वो आपके लोकेशन ओवरी के पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो यहाँ पे आपका थैलेमस या पेटल से ये जुड़ा हुआ होता है और वो आपको पूरा फ्लावर बनाता है। तो अब हम इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। Stamen is made up of anther and filament. Anther is bilobed with each lobe having two theca. अभी आपको मैंने दिखाया था उसमें टू लोब्स होते हैं और हर लोब्स में दो थीका होते हैं। ये आपको आगे के डायग्राम में देखने को मिलेगा। दे आर डाइथिकस। टू थीका होते हैं तो उसको डाइथिकस कहते हैं हम। अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज। आपने देखा होगा या मैं आपको दिखा दूंगी, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होती है, वो लेंथवाइज रन करती है, जो दो थीकास को सेपरेट करती है। एंड ये तो मैंने आपको बताया था कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो जैसे ये है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। वेट अ मिनट, ये वाली जो है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, दिस एंड दिस, विच सेपरेट द टू थीका। जैसे आपका ये एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, इसके अंदर एक थीका ये हो गया, दूसरा थीका ये हो गया, सिमिलरली एक थीका ये हो गया, दूसरा थीका ये हो गया। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है ये आपके थीकास को सेपरेट कर रही है। लेट मी इरेज दिस अदरवाइज इट विल कॉज कंफ्यूजन। ठीक है, तो these are your pollen sacs, they bear pollen grains and these are the line of dehiscence. Moving forward, in a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. तो अभी दिखाया था मैंने आपको, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। They are surrounded by four wall layers: the epidermis, endothecium, middle layers and tapetum. आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको, ऐसे लिखिएगा, वॉल हेडिंग डालिएगा, जैसे वॉल लेयर्स आपने हेडिंग डाल दी ऊपर से, उसके बाद आप इसके फोर ऐसे पार्ट्स कर लीजिए, 1 2, मतलब मैं साथ साथ आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बता रही हूँ ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। इस पर आप लिख लीजिए एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपिटम। तो जो ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर होती है, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। दे फॉर्म द आउटर थ्री वॉल लेयर्स, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो वो डाइस हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है या वो खुल जाता है, जिससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। तो जो आउटर थ्री लेयर्स है ये आपको प्रोटेक्शन या के एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसके डाइसेंस में उसकी हेल्प करते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। बट जो फोर्थ लेयर है दैट इज टेपिटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। तो जो आपके पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं उनका जो नरिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेपिटम की होती है।
So tapetum provides nourishment. Now cells of tapetum possess dense cytoplasm and have more than one nucleus. Cytoplasm उसका dense होता है tapetum का, और वो मल्टीन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है. तो जब एंथर यंग होता है, मतलब अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है, पॉलन ग्रेन्स नहीं बने हैं, तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. तो जो ये स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, ये सेंटर पे वो होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाए जाते हैं जब एंथर यंग होता है, मतलब मैच्योर नहीं हुआ होगा. तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. तो दिस इज सी, आपका सबसे आउटर मोस्ट हो गया एपिडर्मिस. सबसे आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस, देन यू हैव एंडोथीशियम, देन यू हैव मिडल लेयर्स. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इनको याद कर लीजिएगा. अगर सिंपल सा डायग्राम है, इसको अगर आप अपने एग्जाम्स में बना देंगे बोर्ड के एग्जाम्स में, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, बट एक अच्छा सा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ बच्चे ने डीप स्टडी कर रखी है. तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं. इसी का इन्होंने मैग्नीफाइड व्यू दे रखा है. आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस. सी, अब आपको सेल्स तो बनाने हैं ना, बाहर एपिडर्मिस के सेल्स बना लेना, फिर एक लेयर एंडोथीशियम की, दो लेयर्स मिडल लेयर्स बना लेना, उसके अंदर टेपेटम बना लेना. टेपेटम थोड़े बड़े से होंगे, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस होता है. आपके बन गए. और सेंटर में माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जो आपका पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम को फॉर्म करता है या पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन में मदद करता है. मतलब दीज आर द पेरेंट सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो अब ये दो डायग्राम तो याद कर लेंगे, ठीक है. दिस डायग्राम शोज द मैच्योर एंथर. देखो डायसेंस हो चुकी है इसमें, ये खुल चुका है. यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर आ चुके हैं. दीज आर द पॉलन ग्रेन्स जो बाहर आ रहे हैं यहाँ से. तो ये खुल चुका है. इस पे जो एपिडर्मिस था, एंडोथीशियम था, मिडिल लेयर था, टेपेटम था. अब देखो टेपेटम आपका गायब गायब सा दिखेगा क्योंकि पॉलन ग्रेन्स के मैच्योर में उसको उसका यूज अप हो चुका है. एंड अर्लियर, मतलब यहाँ पे जो होता है ना, मैंने आपको बताया था कि पहले जब आपका एंथर डायस नहीं हुआ है, यंग है, तो वहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं एट द सेंटर. तो आप ये तीन डायग्राम याद कर लीजिएगा अच्छे से, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आ सकते हैं, पूछ सकता है एग्जामिनर, और अगर नहीं भी पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आया है, जो आप तो आपके कम ही आएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, तो अगर वो आया हुआ है तो आप जल्दी से डायग्राम बना लीजिए. दिस आउटलाइन डायग्राम यू कैन मेक, और यू कैन मेक दी सेल्स इजीली. टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से, बना लीजिएगा. नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंथर होता है वो फोर साइडेड होता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया अभी मैंने जो आपको दिखाए थे वो लोकेटेड होता है, तो आपको पता ही है. हाँ, ये आपको सब पता है. अब माइक्रोस्पोरेजेनेसिस स्टार्ट करते हैं. See, as the anther develops, the cells of sporogenous tissue जो सेंटर पे पाया जाता है यंग एंथर पे, वो अंडरगो करता है मायोटिक डिवीजन. मेयोसिस होती है उस पे. स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होती है? मेयोसिस होती है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है. फोर थे, फोर पॉलन सैक्स थे, तो टेट्राड बनता है. ठीक है. Now, each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. Thus, each one is a potential pollen or microspore mother cell. स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल जो होता है वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है. इसीलिए each cell of the sporogenous tissue is a potential pollen or microspore mother cell. ठीक है. माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होंगे? जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे. तो जो आपका ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू है वो केपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए. इसीलिए हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है. ठीक है. ओके. नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. So जो प्रोसेस है, जो अभी आपको एक्सप्लेन करी मैंने, जिससे जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है वो आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है, तो हर स्पोरोजेनस टिश्यू आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है. अभी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो आप जिसको आप पॉलन मदर सेल भी कह सकते हो, वो अंडरगो होता है मियोसिस. उसमें मियोसिस होती है जिससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. This process is called microsporogenesis.
So the process of formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप भी इसको लिख लीजिएगा। डेफिनेशन आपका क्वेश्चन आएगा ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, स्टार्ट ही इसी से करना है आपने, ये डेफिनेशन से। मेरा हाथ अभी सेट नहीं है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हाथ को मेरे लाइंस को छोड़ो, आप इस लाइन को लिख लीजिए। Now the microspores are as they are formed are arranged in cluster of 4 cells, the microspore tetrad। बना आपका माइक्रोस्पोर इससे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, अब वो अरेंज होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड में, जो मैंने आपको बताया था ना इससे पहले, ये वाला जो डायग्राम था इसका, ऐसा ऐसा ऐसा। ये हो गया आपका बाहर की लेयर हो गया, मैं सारी लेयर्स तो नहीं बना रही हूँ, बट जो यहाँ पे ऐसे आ रहे थे 1 2 3 यहाँ 4 यहाँ, तो ये जो हो गया आपके, ये हो गया टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। Now this anther matures, dehydrate and microspore dissociate from each other and develops to pollen grains। तो ये हो गया आपका pollen grain formation। ठीक है, now let's move ahead। See, आगे भी डायग्राम आ गया फिर से, सेम डायग्राम है। और ये जो है आपका टेट्राड हुआ 1, देखो ये स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, लिखा है लेबलिंग स्पोरोजेनस टिश्यू। Now this can develop into microspore mother cell। This microspore mother cell will form microspores। The, these microspores will arrange and form microspore tetrad। जो tetrad आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, अब ये तो डायसेंस दिखा दिए इसने। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स आ गए आपके सारे, ये आपके सारे पॉलन ग्रेन्स हैं, एंड यहाँ पे जो आपका टेपिटम होगा वो उसको नरिशमेंट देगा। अब जब ये मैच्योर होके डिहाइड्रेट हो जाएगा तो ये इसकी जो वॉल्स है ये टूट जाएंगी या खुल जाएंगी और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज होल आपका मेल एंड्रोशियम का डेटा या इंफॉर्मेशन, आप इसको पूरा याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, मिनिमल डेटा है ये, और इससे हर चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट द pollen grain। अब pollen grain फॉर्मेशन तो हमने पढ़ लिया, अब pollen grain के बारे में पढ़ते हैं। सो द pollen grain represent the male gametophyte। तो आपको पता है कि मेल gametophyte क्या होता है, pollen grains। एंड दिस शोज अ फ्यू pollen grains। देखो कितना सुंदर है pollen grain, इसका ये एक्साइन स्कल्पचर है, इसमें देखो कितने डिजाइन है इसके आउटर कवरिंग में, ये सब होता है आपके एक्साइंस के थ्रू जो अभी आप पढ़ोगे। ठीक है, सी pollen grains। अब आपको pollen grains के बारे में थोड़ा बहुत है इसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट है। pollen grains का डायमेंशंस दे रखा है 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। क्या है, माइक्रोमीटर्स, इतने छोटे होते हैं pollen grains। इट हैज 2 लेयर्ड वॉल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। मैं आपको इसको कितनी बार हाईलाइट करूं बताने के लिए कि ये है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरे मेल गैमेटोफाइट में। ये क्वेश्चन नीट में इतनी बार आया है, इतनी बार आया है, ये वाला जो स्पोरोपोलेनिन वर्ड है। तो जो आपकी जो आउटर लेयर होती है ना पोलन ग्रेन की, बहुत हार्ड होती है। किसकी बनी होती, किस उसको कहते हैं क्या है, एक्साइन। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। अब मैं आपको एक लाइन बताती हूँ। स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। क्या है, स्पोरोपोलेनिन जो है मोस्ट रेजिस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। हाई टेम्परेचर हो, ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो, सबको सह लेता है, इतना मजबूत होता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज द हार्डेस्ट, नो, वन ऑफ द हार्डेस्ट और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, स्पोरोपोलेनिन। how what makes the outer what makes the pollen grain so resistant to these out atmospheric things, sporopollenin। तो बहुत तरह से आते हैं, तो स्पोरोपोलेनिन आप अच्छे से याद कर लीजिए।
तो जो एक्साइन है उसमें अपर्चर्स होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था उसकी आउटर स्कल्पचरिंग कितना सुंदर लग रहा था, वही होते हैं पॉलन ग्रेन की एक्साइन से बने होते हैं। उसके बीच में ना आपको गैप्स होंगे, छोटे छोटे गैप्स होंगे जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है, दैट इज नोन एज जर्म पोर्स। ठीक है। ये जो उसके अंदर का जो आपका जो पॉलन ग्रेन है, कहीं कहीं पे डिजाइन में अपर्चर्स होते हैं, ये गैप्स होते हैं, कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। तो कुछ पार्ट्स होते हैं उसको जर्म पोर्स कहते हैं। और जो हमारी इनर वॉल है पॉलन ग्रेन की, इट इज कॉल्ड इंटाइन। ये तो पतली सी होती है और कॉन्टिन्यूस होती है, इसमें कोई जर्म पोर्स नहीं होता और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी। हाँ, अब ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। दिस इज अगेन आपका जो एग्जाइन है, इसमें देखो ये स्कल्पचरिंग दिख रही है ना आपको, गोल 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 ऐसे ऐसे ये सिंग सिंग जैसे आर्क हैं जो इसके, वो सब आपके इसमें होते हैं, एग्जाइन से बने होते हैं, और ये स्कल्पचरिंग होती है पॉलन ग्रेन्स की। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। पॉलन ग्रेन्स, अभी आपका डायग्राम है सी, ये पॉलन ग्रेन है आपका, इसमें वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है। ये जो डेवलप करता है आपका जो न्यूक्लियस है, ये एसिमेट्रिक स्पिंडल बनाता है और वैक्यूल जो है इनलार्ज हो गया है। जो वैक्यूल है ये आपका वेजिटेटिव सेल बनाएगा, और जो एसिमेट्रिक स्पिंडल के थ्रू आपका जेनरेटिव सेल बनता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है। एंड जैसे जैसे मेच्योर होता है तो ये टू सेल्स में बदल जाता है, एक सेल दो सेल, वेजिटेटिव सेल जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जेनरेटिव सेल छोटा होता है। डिफरेंस डिफरेंस याद कर लेना। पहला डिफरेंस हो गया, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जेनरेटिव सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व होते हैं, जेनरेटिव सेल में आपका स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है, इरेगुलरली शेप्ड होता है, बट इसका जो न्यूक्लियस होता है वो फंक्शनल होता है। So the generative cell is small and it floats in the cytoplasm. ठीक है? So when the pollen grain is mature, it contains two cells, that is the vegetative cell and the generative cell. In over 60% angiosperms, pollen grains are shed at this two-cell stage. आपका माइक्रोस्पोरेजेनेसिस हो रही है वहाँ, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन्स बन चुके हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर ये डेवलपमेंट चल रहा होता है। तो जब आपका डाइसेंस होगा ना एंथर के 60% एंजियोस्पर्म्स में, ये टू सेल स्टेज में डाइसेंस हो जाता है। और जो बची हुई 40% स्पीशीज है उसमें जेनरेटिव सेल जो होता है ना, ये वाला सेल, ये माइटोटिकली डिवाइड कर जाता है टू मेल गैमेट्स में। एक मेल गैमेट यहाँ से बनेगा, एक मेल गैमेट, मतलब जेनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं बिफोर द pollen grains are shed। देखो लास्ट में तो दो सेल्स बनने ही है ना, तो कुछ मतलब जो 60% के अलावा बचे हुए हैं आपके एंजियोस्पर्म्स की स्पीशीज, उसमें तो ये इसके अंदर ही हो जाएगा, एंथर के अंदर ही हो जाएगा आपका डाइसेंस हो जाएगा, मतलब माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, जिससे आपके दो मेल गैमीट्स बन जाएंगे। बट बाकी जो 60% है उसमें ये दो सेल्स अगर बन चुके हैं ना, तो आपका पॉलन ग्रेन शेड हो जाएंगे। बचा हुआ जो ये जो जेनरेटिव सेल का माइटोसिस है, वो आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के ड्यूरिंग हो जाता है। तो 40% में अभी हो गया पॉलन ग्रेन्स के अंदर, 60% में बाहर आके होता है। ओके, सो वो तीन सेल स्टेज होती है। देन pollen grains के यूजेस कहेंगे या उसके एप्लीकेशंस कह सकते हैं हम। So pollen grains are rich in nutrients and are used as supplements. So they are very rich in nutrients and they are used as supplements by, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहाँ तो फैशन है पता है आपको पॉलन टेबलेट्स को फूड सप्लीमेंट्स के रूप में खाने का। उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं, जो आपके एथलीट्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं पॉलन टैबलेट्स को, जिससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और जो हॉर्सेस होते हैं ना जो रेस में दौड़ते हैं, उनको भी खिलाई जाती है पॉलन टैबलेट्स, उनके भी जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करने के लिए। ठीक है। Second application, this is the first application. Second application is it can cause allergies and bronchial afflictions.
तो कुछ पॉलन ग्रेन से एलर्जीज होती है। एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, पार्थीनियम। पार्थीनियम एक वीड है जो आपका बाहर से लाई गई थी, मतलब हमने जब इम्पोर्ट किया था ना, तो उसके साथ वो हमारे कंट्री में आ गई है। एंड उसका वो जो है ना, वो कंटामिनेंट है इम्पोर्टेड वीट के साथ। बट वो इतनी फैल गई है हमारी कंट्री में, अब उससे हम लोगों को, मतलब कुछ लोगों को पॉलन एलर्जी होती है। तो उस पॉलन एलर्जीज के टाइम पे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे को है पॉलन एलर्जी। तो जो आपका स्प्रिंग सीजन है ना, वो पर्टिकुलर मेरे को पर्टिकुलर किसी प्लांट के पॉलन से होगी। तो स्प्रिंग सीजन जब आता है, तो ये जो फेब्रवरी मार्च जैसे सबकी थोड़ी गर्मियाँ बढ़ने लगेंगी, मेरे को एकदम से बहुत सारी छींकें आएंगी। मतलब आई विल कीप ऑन स्नीजिंग एंड आई विल फेस रनी नोज एंड टीयरी आईज। मतलब बहुत होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हे फीवर और एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये बहुत मतलब प्रोमिनेंट, अब तो बहुत प्रोमिनेंट हो गई है पॉलन एलर्जीज। लाइक मैंने जितना देखा है, मेरी नोन में 40% पॉपुलेशन को है पॉलन एलर्जीज। जिस आजकल जितनों को भी बताओ कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो वो भी कहते हैं हाँ मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है। तो पॉलन एलर्जीज काफी ज्यादा फैल रही है। मतलब फैल क्या रही है, लोगों को हो रही है, क्योंकि वो लोग पहले से ही बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, तो इस वजह से वो बहुत लोगों को हो गई है। इसीलिए पॉलन एलर्जीज भी एक वो है, प्रॉब्लम है। एंड थर्ड एप्लीकेशन इज, मतलब ये एप्लीकेशन नहीं है, दिस इज अबाउट द पॉलन ग्रेन्स। कि जो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है, मतलब वो कितने टाइम के लिए पोटेंट रहेगा, वो डिफरेंट है, मतलब हाईली वेरिएबल है, एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जाम्पल इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, तो जो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है वो 30 मिनट्स तक ही होती है। 30 मिनट्स के बाद वो पॉलन बेकार हो जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। But in some members of Rosaceae, Leguminosae, and Solanaceae, these are three families, उसकी viabilities months में होती है, ठीक है। कुछ की तो बहुत ज़्यादा होती है। And this is the storage. We can store pollen grains of a large number of species in liquid nitrogen at -190 या -196 डिग्री सेल्सियस है। माइनस उसका वहीं रह गया। दिस इज, अरे यार, वेट अ मिनट, दिस इज -196 डिग्री सेल्सियस फॉर यूज। तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं एज अ पॉलन बैंक्स। जैसे सीड बैंक्स होते हैं ना, सीड हम प्रिजर्व करके रखते हैं, वैसे ही पॉलन बैंक्स भी होते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। तो ये वाला हमारा वो कंप्लीट हो गया, मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। हमने इसमें आपका पूरा उसके बारे में पढ़ा। पहले तो फ्लावर्स का ओवरव्यू देखा, फिर हमने स्टेमन के बारे में पढ़ा, दैट इज पिस्टल एंड एंथर एंड, सॉरी पिस्टल कह रही, फीमेल होता है पिस्टल, एंथर एंड फिलामेंट। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन ग्रेन्स, डायसिन्स, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू। फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन पढ़ा, उसके बाद पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो इससे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें आपको देखो फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अब तो नहीं आएगा, 11th में आपका कवर हो चुका है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, वो है आपका एंथर फिलामेंट्स, मतलब स्टेमन के पार्ट। वो आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, एंथर फिलामेंट करके आप उसको एक्सप्लेन कर लेना। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ सकता है आपका लॉन्ग आंसर में, बट सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नहीं आएगा, उसके साथ शायद मेगास्पोरोजेनेसिस आ जाए, या फिर डबल फर्टिलाइजेशन आ जाए, या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आ जाए, या फिर एज अ होल एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर आ जाए, जिसमें आपके प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन सारे इवेंट्स हो। तो उस टाइप से आएगा। बट आप याद कर लीजिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डायग्राम्स के थ्रू, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, स्पोरोजेनस टिश्यू, टेपिटम और पोलन ग्रेन्स, थोड़े तो पार्ट है, आप आराम से उसको डायग्राम के साथ याद कर लीजिए। और जो पोलन ग्रेन्स है उसके उस पे थोड़ा बहुत याद कर लेना, एग्जाइम स्पोरोपोलिन and in time, and then you have to study about the vegetative cell, generative cell। और generative cell 60% में डिवाइड नहीं होता है, जब शेड हो रहा होता है बाद में डिवाइड होता है, बट 40% में वो शेड होने से पहले ही डिवाइड हो जाता है, 2 मेल गैमीट्स बन जाते हैं, ठीक है। देन यू कैन स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ pollens।
So that's it for the first unit. And if you like the video, please like it and share it with your friends ताकि उन तक भी ये easy way में knowledge पहुंच जाए. And you can subscribe to my channel to get more of the videos. जैसे जैसे मैं videos post करूंगी वो आपके पास instantly आती रहेंगी. So that's it. Thank you so much. Bye bye.